Hello friends, I am Mr. Rabindranath Tagore and I welcome you to my channel, that is Learn English with Tagore sir. Dear students, today we shall discuss one of the important poem, and the name of the poem is Where the Mind is Without Fear. This poem is written by Rabindranath Tagore. But before watching this video, as usual I request you, don't forget to subscribe my channel. चलिए तो हम इस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे. रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, it means he born in 1861 and died in 1941. Okay, was the author means poet of Gitanjali, and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Gitanjali, this is a bunch or the collection of poems, and this Gitanjali is a profoundly, very much sensitive, fresh and beautiful a collection of poem. Okay, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. It means नॉन यूरोपियन, अब तक जो नोबेल प्राइज़ मिलते थे सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को ही मिलते थे, लेकिन नॉन यूरोपियन जो एशियन कंट्रीज़ के फर्स्ट टाइम इंडिया के रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि इस कलेक्शन ऑफ पोएट्री के लिए नोबेल अवार्ड लिटरेचर में दिया गया. ओके, दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस पोएम इज़ read. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. So, Where the Mind is Without Fear, actually this poem is originally बंगाली लैंग्वेज में उसका लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बट इन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड दिस पोएम इन इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट द पोएम इज from the Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Anthology means collection of the poems. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. So as you know that Tagore is also called one of the freedom fighter. Tagore को भी freedom fighter कहा जाता था. When in 1947 when this poem was composed, that time India was ruled by British government. Okay, in this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. इस poem में क्या बताया गया है? In this poem, through this poem, Rabindranath Tagore has expressed what type of freedom India want. इंडिया डू नॉट जस्ट वांट पॉलिटिकल फ्रीडम, सिर्फ फ्रीडम हमें पॉलिटिकली नहीं चाहिए. द इंडिया शुड गेट द फ्रीडम एजुकेशनल लेवल, देन इकोनॉमिक लेवल. सो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम we want, India wants. So he had expressed or described a detailed explanation. That means what type of freedom India want. इंडिया के लिए किस टाइप का फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए, इसके बारे में इस कविता में बताया गया है. तो यह हम लाइन बाय लाइन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल रीड द होल पोएम, देन आई शैल एक्सप्लेन in detail, line wise explanation I will give you. Okay, let's see the first line. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Now let's see
a line-wise explanation of this poem. First line, where the mind is without fear and the head is held high. First of all, try to understand, in this poem, the poet Rabindranath Tagore is requesting, is praying to the Almighty God. इस पोएम में कवि गॉड को, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमें व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम चाहिए, हमें हमारे कंट्रीमैन को किस टाइप का फ्रीडम चाहिए, इसके बारे में और गॉड से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं. अब चलिए देखेंगे फर्स्ट लाइन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हमें व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम कंट्रीमैन वांट, हमारे देशवासियों को किस टाइप की स्वतंत्रता चाहिए कि जहां पर द माइंड इज विदाउट फियर, हर एक का मन विदाउट फियर, फियरलेस, यानी हर एक व्यक्ति फियरलेस होना चाहिए. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जिनका सीना गर्व से ऊंचा रहना चाहिए. जिस देश में, वहाँ इस टाइप का हमें फ्रीडम चाहिए. सो इन इंग्लिश वी कैन एक्सप्लेन दैट हियर the poet expressed, the poet described, the Indians want that type of freedom where all the people should fearless. They should not have any type of compulsion or force or any type of fear in their mind. उनके मन में, उनके दिल में किसी भी तरह की फियर या डर नहीं होना चाहिए. एंड हेड इज हेल्ड हाई, द इंडियंस, द कंट्रीमैन शुड बी प्राउडली लिव, देयर हेड शुड बी हेल्ड हाई. जिनके हम बोल सकते हैं ना, सीना ताने हम गर्व से, प्रेजुडाइज से, गर्व से हम खड़े हो सके. सो दिस टाइप ऑफ फ्रीडम वी वांट, इंडियंस वांट. So, oh God, please give us this type of freedom. इस तरह से वो प्रार्थना करते. Now here you can see that in British government how the Indian people were living their lives. यहाँ पर देख सकते कि इंडियंस के ऊपर ये ब्रिटिशर्स किस तरह से अत्याचार करते. The people were always living in fearful situation. But no, we want this type of where each and every Indian should be fearless. He should be live proudly. That means their head should be held high. Okay. Now let's see the next line of this poem. Where the knowledge is free. Where the knowledge is free, जहाँ पर ज्ञान free हो. अर्थात where knowledge means education should be allowed to everyone. हर एक को शिक्षा प्राप्त करने का हक होना चाहिए. जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि जो अपर क्लास पीपल दे यूज टू टेक द एजुकेशन, बट पुअर पीपल वेर नॉट अलाउड टू गेट द एजुकेशन. दिस टाइप ऑफ नॉट discrimination should not be there, but each and every one should be allowed to get the education. That is why here is called where the knowledge is free. This is the meaning of this line. Okay, next line. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic world. Where, जहाँ पर in this line the poet is talking about unity. He is talking about not only the unity of our India or our country, but he wants the unity of whole the world. यहाँ पर कवि सिर्फ भारत देश की, हिंदुस्तान की यूनिटी के बारे में नहीं सोच रही है. So he is thinking about the whole world, how the world should be. हमारे देश की यूनिटी के साथ साथ पूरे संसार में, वर्ल्ड में किस तरह से यूनिटी चाहिए, इसके बारे में वो बताते. Where the world has not been broken up fragments. Fragments mean pieces. ये पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए. मीन्स दिस वर्ल्ड और दिस कंट्री शुड नॉट बी कट इन पीसेस अंडर द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन.
किस टाइप के पीसेस या ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए? कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कलर के नाम, ये गोरा है, ये काला है. सो दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स, रिलीजन, कलर, caste, this type of group should not be there, and the country and the world should not be cut in pieces. इस तरह के टुकड़ों में हमारा देश या पूरा संसार या वर्ल्ड नहीं टुकड़ों में बांटना चाहिए. सो इस तरह के नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स द ग्रुप ऑफ रिलीजन, group of caste, group of color, group of poor and rich. So this type of group should not be there in world as well as in the country. So here the poet is talking about the how the unity should be in our country as well as whole the world. Okay, now let's see the explanation of the next line. Where the words come out from the depth of truth, जहां पर शब्द come out from the depth of truth. Depth of truth यानी सत्यता के शब्द, ट्रूथनेस यानी हमारे कंट्रीमैन, द पीपल ऑफ माई कंट्री, they should be honest and truthful. इस लाइन से पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि मेरे देश इस तरह का होना चाहिए where each and every person should be honest, truthful. Whenever he talk, this word should be what we say, good, pure, not a superficial. So इस टाइप के जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने बॉटम ऑफ द हार्ट, दिल से बात बोलना चाहिए, सच्ची बात बोलना चाहिए. So that is why he says that where the words come out from the depth of truth, यानी हृदय से, दिल से बात निकलनी चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति सच्चा होना चाहिए. Everyone should be honest and truthfulness. Okay, so दिस टाइप ऑफ पीपल आई वॉन्ट इन माई कंट्री. इस तरह का देश में मेरे लोग चाहिए, ऐसे इच्छा द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हियर थ्रू दिस लाइन. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट लाइन. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. टायरलेस यानी थकान महसूस नहीं करते हुए, कंटिन्यूअस, न थकते हुए. स्ट्राइविंग यानी हार्ड वर्क. ओके, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, स्ट्रेच करना, आर्म्स मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लोग क्या होना चाहिए? दे शुड बी हार्ड वर्कर. दे शुड नॉट बी टायर्ड बाय वर्किंग. हार्ड वर्क करने से थकने वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए. कंटिन्यूस हार्ड वर्क करने वाले चाहिए, जिससे क्या होगा? स्ट्रेचेस देयर आर्म्स, वो अपने आप से बाहु फैलाएंगे यानी देयर शुड बी अ प्रोग्रेस. स्ट्रेचेस यानी प्रोग्रेस के बारे में बोलते हैं. स्ट्रेचेस का मीनिंग यहाँ क्या ले सकते हैं हम? प्रोग्रेस. ओके, stretch its arms towards perfection. If the people of our country, they continue hard worker, then there is the possibility of reaching the goal, and in long term they will be perfect. यानी अगर हमारे देशवासी, हर एक व्यक्ति हार्ड वर्क करता है तो अपने गोल, अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है, एंड द एवरीवन विल बी perfect. हर एक व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है. So this type, now here you can see some of the great personalities of our countrymen, how they were great and perfect in their field. So this type of people I want in my country. Now let's see the meaning of the next line. Where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. अब इसका मीनिंग देखिए. वेयर, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग,
साइंटिफिक थिंकिंग, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, क्लियर स्ट्रीम, क्लियर यानी प्योर, स्ट्रीम का मतलब जैसे झरना होता है, प्योर वाटर होता है। हियर द स्ट्रीम एंड रीजन आर कंपेयर्ड, रीजन मतलब यानी प्योर थिंकिंग करने वाले, अच्छे विचार करने वाले, साइंटिफिक थिंकिंग करने वाले, लॉजिकल थिंकिंग वी कैन से। सो लॉजिकल थिंकिंग इज कंपेयर टू क्लियर स्ट्रीम। हमारे देशवासियों की, लोगों की विचार शैली किस तरह की चाहिए? प्योर चाहिए, जिस तरह की झरना जो पानी प्योर होता है। सो हमारे देशवासियों, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, दे शुड थिंक लॉजिकली, साइंटिफिकली, लाइक अ clear stream. So clear stream of reason here is one figure of speech that is a metaphor. Metaphor figure of speech यहाँ पर आता है. Okay. Clear thinking of reason has not lost. इस तरह के लॉजिकल थिंकिंग करने वाले लोग, इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, यानी गायब नहीं होनी चाहिए। किस तरह से थिंकिंग करके? हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of dead habit. डेड हैबिट का मतलब होता है सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशन। डेरी डेजर्ट, डेजर्ट यानी जैसे हम बोलते ना डेजर्टेड एरिया, क्या बोलते हैं हिंदी में डेजर्ट को? डेरी यानी वालूमय, बहुत सारी वालू होती है। और डेजर्ट का मतलब होता है, क्या होता है डेजर्ट का मतलब? आई डोंट नो इन हिंदी। लेकिन डेड हैबिट का कंपैरिजन डेजर्टेड सैंड के साथ किया है। यानी कि सुपरस्टिशन की वजह से लॉजिकल थिंकिंग इसमें लॉस नहीं होनी चाहिए, यानी डेड हैबिट्स ओवर पावर नहीं होना चाहिए। किसके साथ? लॉजिकल थिंकिंग के साथ, रीजन के साथ। सो हियर इन थ्रू दिस लाइन द पोएट वांटेड टू से दैट माय कंट्रीमैन शुड थिंक लॉजिकली, क्लियर एज अ प्योर एज अ स्ट्रीम, प्योर एज अ स्ट्रीम वाटर। दे शुड नॉट बी लॉस्ट बाय थिंकिंग सुपरस्टिशियस थिंकिंग करके वो उनकी विचार शैली नीचे नहीं आनी चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ थॉट्स, ये लॉजिकल थिंकिंग दिखाई दिया है, एंड डेड हैबिट्स यहाँ पर दिखाई दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। वेयर, जहाँ पर, जिस देश में माइंड इज लेड, माइंड यानी हर एक व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन, माइंड का मतलब ये लो, लेड फॉरवर्ड बाय दी, वो आगे आगे बढ़ते जाइए। किसके साथ? बाय दी, दी मीन्स यू, यू मीन्स गॉड, आप ईश्वर, आप हमें, हमारे देशवासियों को आगे लेके जाइए, फॉरवर्ड, आगे लेके जाइए, हम आपके साथ फॉलो करेंगे। सो वी शुड फॉलो यू, वी शुड फॉलो दी, आवर माइंड, माइंड मीन्स वी ऑल द पीपल शुड फॉलो यू, हम आपको फॉलो करेंगे, गॉड को फॉलो करने वाले चाहिए। इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एंड अगर आपके साथ फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करते हुए आगे प्रोग्रेस करते रहे तो क्या होगा? तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड, एवर वाइडनिंग यानी ऐसे फैलना। एवर वाइडनिंग का मतलब यहाँ लेना है ऑलवेज प्रोग्रेसिव, हमेशा हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी और हम अच्छे एक्शन यानी अच्छे कर्म करते रहेंगे। सो इफ वी वांट प्रोग्रेसिव in our country, the people of this country, we have to follow thee, we have to follow you, you God, you Almighty। हमें आपको फॉलो करना है, हम तो आप हमें क्या करें? आगे लेके जाइए।
तो ये हमारा के लॉजिकल थिंकिंग। सो यहाँ पर हम देख सकते, सो दैट टाइम in 1911, that time the Rabindranath Tagore was how he was thinking, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, उनके विचार किस तरह से थे, जैसे 100 years ago हम बोल सकते हैं। Now let's the meaning of the next line. Into that heaven of freedom my father let my country awake. This is the last line of this poem. Into that heaven of freedom my father let my country, यहाँ personification figure of speech है, गॉड को माई फादर का एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। सो पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। अगर ये सब वट एवर द डिमांड्स, वट एवर द विश, डिज़ायर द रविन्द्रनाथ टैगोर द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड बिफोर द गॉड, गॉड के सामने जो भी उन्होंने अपनी विश, इच्छाएं व्यक्त करी, अगर ये सब पूरा हो जाता है, इफ ऑल दिस विशेस, डिज़ायर्स फुलफिल्ड, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री विल बी, तो देश हमारा किस तरह से हो सकता है, द हेवन ऑफ फ्रीडम, मेटाफर भी है, हेवन ऑफ, हेवन अलग है, फ्रीडम अलग है, वो जो हमारा इस टाइप का फ्रीडम मिलेगा, सो दिस टाइप ऑफ फ्रीडम विल लाइक अ हेवन। अगर ऐसा फ्रीडम हमें मिलता है, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, वो हमारे लिए हेवन जैसा रहेगा, एक स्वर्ग जैसा रहेगा। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर, ये फादर किसके लिए कहा है, गॉड के लिए कहा है। ओ गॉड लेट माई कंट्री अवेक, मेरे कंट्री को वहां तक लेके जाइए। अवेक, लिफ्ट, अराइज, अवेक का मतलब क्या बोल सकते हैं, हमें लिफ्ट कीजिए, अराइज, वहाँ हमें उतने ऊंचाई तक हमारे देश को ले जाइए जहाँ पर हमारा फ्रीडम हमें ऐसा लगे दैट वी आर लिविंग इन हेवन। सो दिस टाइप ऑफ ब्यूटिफुल पोएम द रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन हियर एंड ही हैज़ expressed his thought what type of freedom we Indians want. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share and comments. One more thing I would like to tell you, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक पोएम के रिलेटेड जो भी मार्जिन क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप है, I will explain you in the next video. Okay, so आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप और एक बात है, जो भी टेक्स्ट या जो भी नोट्स है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, आपको englishforlearners.com इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप की जो वीडियोज़ होती है, तो यू विल गेट हियर इन द चैनल ऑफ इट्स माई चॉइस, एक अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही तो ग्रामर होने दो, राइटिंग स्किल और अदर टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड डे, थैंक यू।